Good morning, everybody. This is my first lecture for a ninth class physics motion. I'm taking first of all the basic definitions rest and motion. Notes already reached to you. You can read there. What is the proper definition of a rest? Any body which is not changing its position with respect to a fixed point which is in the surrounding is called at rest. For example, a book. Just imagine this is a room, and in this room here is a one thing is lying. Just imagine your book is here. Now from this wall it is, if 1 meter apart at this time, then after 1 hour also it will be at a 1 meter apart. 2 hours again the same distance, means this book is at rest with respect to walls of this room. No definition of a motion. A body which is changing its position with respect to the surrounding after the passage of time. Like if anything is here, just like you can imagine one thing is moving in a room, you are walking in a room, then you are changing your position from here to here. This means at one time you was this 1 meter apart from this wall, and at the next time maybe 1 minute up, after 1 minute your position is here. This means your distance changes from this ball. With again you can see that from this ball also, from all these balls your position is changing. So you are in motion, right? When you was here at this position A, and you was observing from this point, this point is the observation point. From this point we are observing. This point is also known as a reference point. From where we are observing, that point is called a reference point. Now these two terms, rest and motions, are relative terms. What is the meaning of relative? Relative means one body which is at rest for one person can be in motion for the other ones. Means a body is at rest, we can't say that is always at rest. For example, I'm taking a case of two trains. Just imagine here is a one person A. In the same train in front of this is sitting another one V. Now the train is moving. Whenever I will ask to A that V is moving or not, then A will say no, it is 1 meter apart from me always. Means B is at rest always with respect to A. शॉर्ट में समझाऊं बेटा आपको, तो A जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, और अगर A को पूछा जाएगा कि B रेस्ट में है या नहीं, तो A कहेगा कि B तो रेस्ट में है. ठीक है, समझ रहे हैं आप. लेकिन अगर नीचे कोई ग्राउंड पे C पर्सन खड़ा है, C पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस का, अगर मैं C को पूछूंगा कि बेटा A जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो C क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यस, ये तो चल रहा है, उसको तो ये दिख रहा है कि ये तो चल रहा है ना. अभी ये यहाँ है, ट्रेन थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, तो C क्या बोलेगा कि B जो है वो तो मोशन में है, तो B इस पर्सन के लिए रेस्ट में है, और यही B इस C के लिए मोशन में है. तभी कहते हैं एक बॉडी जो रेस्ट में है वो सभी के लिए रेस्ट में नहीं है. तो रिलेटिव टर्म्स हैं, देखना पड़ता है. इनफैक्ट बेटा कोई भी बॉडी जो है दुनिया में उसे रेस्ट में कहा ही नहीं जा सकता. मैं एक बड़ा सा एग्जांपल दूं. ये अर्थ है, देखो, है ना. इस अर्थ पे सारी ज़मीन पे इतने स्टोन्स पड़े हैं, आप बोलोगे सारे रेस्ट में हैं. लेकिन अगर इस अर्थ को मून पे बैठ के देखें तो अर्थ घूम रही है ना. मीन्स ऑल अर्थ इज मूविंग, मीन्स स्टोन आर आल्सो मूविंग, मीन्स दे आर इन मोशन.
फॉर अ पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट विच इज ऑन द मून। सो क्या हुआ, ये स्टोन्स उसके लिए, मून के लिए मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन फिक्स थिंग नहीं होती, एक चीज एक के लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। आई होप दैट रेस्ट एंड मोशन टर्म्स आर क्लियर टू यू। नाउ आई एम टेकिंग a topic, how the position of an object described। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे बताएंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक चीज ओरिजिन से 4 मीटर एक्स एक्सिस को चली गई, एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब 4 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, पेज पे कैसे लेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 4 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर तो आपको पता ही इतना सा होता है। तो आप यहाँ पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 हो गया। तो अब बॉडी 4 मीटर चली है, मीन्स वो यहाँ तक चली है, समझा रहा है। एक्स एक्सिस को चलिए तो यहाँ आ जाएगा, अगर बाई एक्सिस को होगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह। इन द सेम वे you know that east is opposite to west, north is here and south is here. If you will keep the map of India in your mind, अपने दिमाग में रखो मैप को। आपको पता ना, इस तरफ ईस्ट है, सनराइज होता है, इस तरफ सेट होता है। दिस इज द नॉर्थ, हमारा पंजाब। साउथ इस नॉर्थ में है, जम्मू एंड कश्मीर साउथ, दिस इज डाउनवर्ड्स। अब अगर मेरे को कोई कहता है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में घूम रही है, ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस है। सो द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 1 मीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 1 मीटर की दूरी पे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस मीन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लाइक हियर आई कैन ड्रॉ दिस 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ को जाना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरफ गए कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री इतना सा होगा ना बेटा एंगल्स। एंड 1 डिस्टेंस, तो आप फिर वही करोगे, 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान के चलो, 1 सेंटीमीटर एक लाइन लगा लो बेटा, और ये जो 30 डिग्री ये इस ऑब्जेक्ट की यहाँ ये पोजीशन होगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो बेस्ट कहाँ है, ये बेस्ट, नॉर्थ से चलना है, 30 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, दिस इज अगेन 1 मीटर बोला है तो ये 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लाइन लगाई, एंड दिस इज दैट पोजीशन। सी द थर्ड वन, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवार्ड साउथ, वेरी साउथ, हियर इज। सो कोई एंगल नहीं है जिस साउथ की तरफ चलना है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? नो आई एम टेकिंग अ टॉपिक, scalar and vector physical quantities. Many times you have studied in the lower classes about these. Physical quantities means what? Which we can measure, like mass, we can measure mass. Like length, we can measure a length in meters. Lot of things are there. These are called physical quantities. Now they are of two types, scalar and vectors. Scalar means which has magnitude only. Which has magnitude only, and vector means which has magnitude and direction both, and direction. Magnitude means what? Nothing it is beta, it is a simple, like if I will say 4 kilogram, so 4 is the magnitude and kilogram is the unit. So mass को किलोग्राम में करते हैं ना बेटा, तो ये कितना बन गया 4 किलोग्राम। 4 जो है वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं जरूरत यहाँ है ना कि किस तरफ को है ना। लेंथ, लेंथ में भी सीधा 1 मीटर, किस तरफ कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बेटा। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे हम बोलेंगे 4 मीटर किस तरफ, टूवार्ड साउथ, जैसे हमें पीछे एग्जाम्पल किया एंगल बता रहे थे, अगर जैसे बोल दिया टूवार्ड्स साउथ, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो इनको बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, न्यू टर्म्स आर
विच वी आर गोइंग टू स्टडी 9th क्लास, एक्सेलरेशंस, फोर्स, है ना, फोर्स कितनी लगी, किस डायरेक्शन को लगी, ये जरूरी है ना, इनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी बेटा. इज इट क्लियर? आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल विच इज ऑन योर बुक ऑल्सो. शो फॉलोइंग ग्राफिकली, ग्राफ से बताना है. एक्चुअली जो वेक्टर्स होते हैं बेटा, ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को इस तरह से एरो लगा के हम यूज़ करते हैं. चलो 9th क्लास में तो हम इतना डीपली नहीं जाते, बट पता होना चाहिए. इसको हम एरो लगाएंगे ऊपर, ठीक है. इस तरह से हम वेक्टर शो करते हैं और एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एरो ऐसे लगा के भी इस तरफ गया और कितना गया, जैसे मैंने 2 मीटर बोल दिया तो आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 2 सेंटीमीटर, और इस तरफ शो कर दिया. जैसे कि एग्जांपल में मैं बहुत क्लियर करवाऊंगा आपको बेटा. शो फॉलोइंग ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर टुवार्ड्स 30 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ. बेस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड अ बेस्ट. बेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से इस तरफ 30 डिग्री, कितना चलना है, 2.5 मीटर ऑन ए स्केल. कौन सी स्केल पे, इसने ऑलरेडी बता दिया. 1 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर मान के चलो, तो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर. एक स्केल लो और स्केल से यहाँ सबसे पहले एक एंगल बनाओ प्रोटेक्टर से 30 डिग्री का, एंड एक स्केल से 2.5 मीटर की लाइन लगा दो. सो ये जो पोजीशन है इसमें एरो, तो ये ओरिजिन से ये जो एरो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा था, ये वो वेक्टर है. जैसे आप इसको ओ ए बोल सकते हो, ओ ए. तो ये वेक्टर जो है वो उस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है बेटा, जो कि 2.5 मीटर की है और 30 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ से बेस्ट है. Last topic of today, I am taking distance and displacement. What is distance and displacement? Definitions are much clear to you from our notes, I think. Distance means actual path length. Like one object is moving 4 meter from point O to A, and from A to V it is moving 2 meter. So this is the path length, 4 plus 2, total 6 meter. This is the 6 meter is the distance, total path traveled by the object. But displacement is what thing is. Displacement means from initial position to the final position, the shortest distance, shortest path. Shortest path means straight line. जो इनिशियल पोजीशन है उसकी फाइनल पोजीशन के साथ एक एरो, इनिशियल से फाइनल को एक एरो लगा दो. अब ये जो एरो है ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो बता रहा है कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. कितनी हुई है, यू नो, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 है ना, अंडर रूट 20. ये आपका जो है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट बन गई. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि कवर किया गया है. अब देखो बेटा कि अगर मैं आपको बात कहूँ डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जैसे 4 मीटर 5 मीटर. बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और ज़ीरो भी होगी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर हियर एंड हियर इट इज़, है ना. अब आपको कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये हो जाएगी मच क्लियर, दिस वे, राइट साइड को आगे पॉजिटिव आएगी. नेगेटिव का मतलब क्या, वो यूँ चला यूँ चला यूँ चला और यहाँ जाके रुक गया, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड को डिस्प्लेसमेंट आएगी. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, मींस डिस्प्लेसमेंट इन अ लेफ्ट साइड. बट अगर ऑब्जेक्ट घूम के, जैसे सर्कल की बात करें, यहाँ से चला और ये घूम के यहीं आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट. अगर मैं इसका एक टेबल बना के आपको बोलूँ कि इसके डिफेंस करो, तो पहले तो डेफिनेशन ही आ जाती है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लिखेंगे द पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का. ये स्केलर होता है बेटा और ये वेक्टर होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, राइट.
ये पॉजिटिव होगा हमेशा, ये पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। अब देखो आप ध्यान दो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगी, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट सीधा चलेगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, हमेशा कम ही होगी, है ना। ये चला देखो यहाँ पहुँच गया मान लो, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इतनी सी। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटी होगी, इक्वल हो सकती है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर सीधी चलेगी ऑब्जेक्ट तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।